Good morning, everyone. Can you see me and hear me? Am I audible and visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बहुत quickly थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. Last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We were talking about the varieties of diseases. See, in today's class, we will keep our emphasis mainly on one disease, and that is malaria and the cycle. So, this is what we are going to talk about today. But very quickly, let's revise. Diseases can be divided into two categories. One is known as infectious disease, and then you have the diseases which are non-infectious diseases. So diseases which have microorganisms as their causal agents are known as infectious diseases, which can spread from one person to the other. And then you have non-infectious diseases which cannot spread from one person to the other. And then we had also learned that you divide diseases into other two broad categories, that is acquired disease. One is acquired disease and another one is you're born with it. That is a congenital disease. So I suppose you don't have any problem in these. And then we had started off in the last class with the varieties of bacterial, viral. I'd given you a chart, and that was a general chart about the different bacterial diseases and the causal agents, and the different viral diseases and their causative agents. Okay. Now, do you all remember that when we talked about the bacterial diseases, a bacteria causes disease mainly by two pathways. What is that? This we had discussed in the last class. Okay, tell me, how many categories of bacteria are there based on their gram character? Positive and negative. Positive and negative. And then we had learned that there is a basic type of a difference between the positive gram positive bacterial infection and the gram negative bacterial infection. Do you remember that? Oligopolysaccharide. What? I'm In not gram talking about negative I'm not talking bacteria. about the I'm not talking about the structure. I'm saying there is a basic difference in the type of infection or the type of disease that is being caused. जो disease cause होता है उसमें एक basic Fever. difference है. Fever किसमें देखा जाता है? Gram negative bacteria. कब देखा जाता है और क्यों देखा जाता है? बोलो. क्वेश्चन दो क्वेश्चंस हैं. कब देखा जाता है और क्यों देखा जाता है? Why is gram negative infection associated with fever? जब एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है तब देखा जाता है. Yes, endotoxin released होता है. ये करेक्ट बात है. एलपीएस या एंडोटॉक्सिन जब रिलीज होगा तब ये প্রসেসটা প্রসেসটা জানতে চাইছেন? ना कब देखा जाता है, कब फीवर कब फॉर्म होगा, क्यों फॉर्म होता है? जब मैक्रोफेजेस या फिर कुछ सेल उस पर अटैक करेंगे तब एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा एंड तभी फीवर होगा. সো এলপিএস সলিউবলাইজড হয়ে যায় ব্লাডের মধ্যে, তো সেটা যখন ব্রেনে যায় হাইপোথ্যালামাসে তখন থার্মোস্ট্যাটকে চেঞ্জ করে এন্ড দেন ফিভারটা দেখা যায়। यस यस मोर और लेस सबने मिलकर करेक्ट आंसर दिया है कि जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तब फीवर नहीं देखा जाता है. दिस इज द डिफरेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तब फीवर नहीं होता है, तब कोई ज्यादा सिम्टम तुम्हें नहीं दिखेगा. हाँ, यू कैन हैव पेन इन योर थ्रोट. सपोज यू हैव अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, you'll have pain in your throat and everything. This is there. लेकिन fever will be there when bacteremia is formed. What is bacteremia? Bacteremia is a condition जब वो जो बैक्टीरिया है इट क्रॉसेस द साइट ऑफ इन्फेक्शन और क्रॉस करके वो वापस कहाँ चला जाता है? वापस ब्लड में चला जाता है. ब्लड में जाने के बाद उसका लाइसिस होता है. ब्लड में जाने के बाद उसका लाइसिस होता है और लाइसिस होने के बाद तब वो एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा और तब जाके वो जैसा अभी तुम लोगों ने कहा कि इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इट कैन गो टू द हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस में ये जो बैलेंस है, देयर इज अ फाइन बैलेंस. It is known as the thermostat. So the thermostat is being it's being rendered inactive, and you start feeling cold. On the other hand, your body starts getting warm. Very simple. ये तो हो गया ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन. व्हाट अबाउट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन? ग्राम पॉजिटिव जब होता है, दे रिलीज समथिंग व्हिच इज नोन एज एक्सोटॉक्सिन.
there are certain gram-positive bacteria which release something which is known as exotoxin. So, bacterial diseases, it can be divided into two categories. Bacterial diseases can be divided into two categories. Basically, either you will have to have the bacteria or you don't need the bacteria at all. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड जब फीवर होता है या एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड जो शॉक होता है, उसके लिए बैक्टीरिया की कोई जरूरत नहीं है. बैक्टीरिया by that time is dead. Okay, I'll give you another example. For example, tetanus और से कोलेरा. हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन I'm just giving you idea about the different categories of bacterial infection. So, जैसे tetanus की अगर मैं बात करूं, does anyone know what is the causative agent of tetanus? Which bacteria? Clostridium tetani. Clostridium tetani. Okay, Clostridium tetani. What type of a bacteria is it? Now, when I say what type of a bacteria, please classify the bacteria according to the requirement of oxygen. Does it require oxygen? Does it not require oxygen? What type of a bacteria is it? Is it aerobic, anaerobic, what? Any idea? No idea? It's a it's a anaerobic bacteria or microaerophilic bacteria. उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है for its growth. So ऐसे बैक्टीरिया में क्या होता है, जब हमारा एक डीप कट होगा, टिटेनस की बात करते हैं, जब हमारा एक डीप कट होगा कहीं पर भी, तो जनरली क्लॉस्ट्रीडियम इज वन ऑफ द बैक्टीरियाज व्हिच ग्रोज इन सॉइल बैक्टीरिया है. तो सॉइल से हमारे जहां पर लैसरेशन होगा या फिर जहां पर डीप कट होता है, तो ये बैक्टीरिया कॉलोनाइज करना स्टार्ट करता है. सुनो, नॉर्मल अगर कट है, नॉर्मल कट, वहां पर टिटेनस नहीं होता है. इफ यू हैव अ वेरी डीप कट, देन टिटेनस होता है. कैन समवन थिंक एंड टेल मी व्हाई? I have not told you why, but can you think and tell me why? Part of the answer I have already given. Deep cut होगा तो it will probably like cut the blood vessel. तो उसमें ऑक्सीजन, ब्लड तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है, तो उसको तो जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए होगा वो तो वहां से मिल जाएगा. एक सेकंड. ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना उसको. चले से उसको तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए. Doesn't want oxygen. It's a Okay, sir. microaerophilic organism. Anaerobic, there are certain strains which are anaerobic and then most of them are microaerophilic. उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है. तो फिर अब सोचो. Anyone? अरे सोचना पड़ेगा, सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जा सकता है. और फिर बोलोगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया, फिर तुम लोग सोचोगे कि सिलेबस से एब्सोल्युटली सिलेबस बाहर नहीं है, लेकिन सोचो, ब्रॉडन योर व्यूज. सो होगा तो उसको एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा ना. एब्सोल्युटली. छोटा कट होगा तो एयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो ऑक्सीजन मिल जाएगा और डीप कट में नहीं मिलेगा. हाँ, और टेरेसा एक्चुअली तुमने जो बोला कि वो ब्लड के अंदर एंटर करता है, ब्लड में तो बाद में एंटर करेगा. हमारा तो खुद का सिस्टम है, फाइब्रोनेक्टिन एंड एवरीथिंग इट इज गोइंग टू क्लस्टर अप ओवर देयर. तो इसीलिए क्या होता है, वहां पर बेसिकली वो ब्लड तक इनिशियली पहुंच नहीं पाता है. तो वहां पर डीप कट जब होता है, डीपर लेयर्स में एक सॉर्ट ऑफ एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. तब जाके एक्चुअली बाद में क्या होता है, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है या फिर कोलेरा भी है, कोलेरा को मैं अलग रखता हूं अभी, लेकिन व्हाटएवर, इनमें क्या होता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया जब कॉलोनाइज कर रहा है, तब बेसिकली सिम्टम्स नहीं दिखता है. बेसिकली क्या होता है, in that condition the bacteria starts releasing a toxin which is known as an exotoxin. So what is the difference between an endotoxin and an exotoxin? Endotoxin is seen in a gram negative bacteria. बैक्टीरिया का खुद का पार्ट है, वो खुद के अंदर टॉक्सिन है. लाइपोपॉलीसैकेराइड itself is a toxin. Okay, and then when I am talking about exotoxin, then that is under suitable conditions the bacteria is going to release toxin. So this is one category of infection that does not require bacteria.
It does not require bacteria. अगर by chance ये हो कि suppose Clostridium tetani ने infect नहीं किया है और directly तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, directly toxin enter किया है तुम्हारे body में, तब भी disease होगा. In fact, Clostridium जो tetanus toxin या फिर botulinum toxin, just 1 mg, please try to understand, just 1 mg is good enough to kill around 1,000 people. Are you understanding how strong the toxin is? Okay, so it starts causing paralysis in your body. Anyway, वो बाद में हम details में पढ़ेंगे, लेकिन what I wanted to give you an overview of is कि bacterial infections, हमको हमेशा लगता है कि bacteria colonize कर रहा है और तभी infection होगा. हाँ, वो तो है definitely, लेकिन ये जो नया, शायद बहुत जनों को ये पता नहीं है कि बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है, उसको गैदर करने के लिए you do not necessarily need the bacteria. Okay, it can cause the infection through the toxin. Just a second, please. Okay, so did you understand this thing कि bacterial infection या bacterial जो symptoms है उसको cause करने के लिए you do not necessarily need the bacteria. ये bacteria का एक feature है जो सारे organisms, the rest of the microorganisms में नहीं दिखता है always. Have you understood this? Any problem in this concept? The bacteria can also release endotoxin, it can also release exotoxin to cause the symptoms of a disease. Have you understood this or not? Yes, sir. Okay, now we are going to go into a newer topic. Wait, अब सब board देखो. Everyone look at the board. See, now today the topic that we are going to talk about is protozoan disease, and one of the very important protozoan disease, which is malaria. Okay, अब कोई मुझे बता पाएगा malaria, who is the causal organism of malaria? Who is the causal organism of malaria? किसी को नहीं पता? क्या कर रहे हो? Hello everyone, can you hear me? Hello. So can you repeat the question? मलेरिया का causal organism क्या है? Plasmodium vivax. Plasmodium. ये बोलने में इतना टाइम लग गया? सिर्फ Plasmodium vivax और something else also? तो मतलब Plasmodium species. Plasmodium. Okay, चलो Plasmodium consider करते हैं. ठीक है, correct है. So malaria, ठीक है. So we are going to talk in details about malaria today. Very very important. in depth knowledge चाहिए इसके लिए. अच्छा. एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. Generally, it was being seen that malaria, it has been, people have been suffering from malaria since thousands of years, thousands and thousands of years. और ये जो malaria caused होता है, ये malaria is a very, what can I say? It's a very complicated disease. I'll explain why it's complicated. अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि there are two categories of infections that can be caused. The first type of infection is the organism itself is there. खुद organism खुद है. और second type क्या है? Organism नहीं है, लेकिन कुछ और वो चीज रिलीज करता है. वो क्या है? What did I say? Endotoxin. Endotoxin. No, not only endotoxin. It can be an exotoxin also. So I'll simply write toxin. एंडोटॉक्सिन तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रहता है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रिलीज करता है उसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि वो उसके बॉडी के अंदर रहता है. और बैक्टीरिया, until and unless the bacteria itself is being what can I say, बैक्टीरिया खुद जब तक
लाइस नहीं होगा तब तक वो टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, इसीलिए उसको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है। एनीवे, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, और टॉक्सिन भी रिलीज होता है, उसके भी अलग कुछ सिम्टम्स होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने क्यों पहले तुम लोगों को बैक्टीरिया के बारे में बताया, क्योंकि बैक्टीरिया ईदर इट इज टॉक्सिन मीडिएटेड और इट इज ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड। मलेरिया, व्हाई इज इट सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज ऑर्गेनिज्म खुद इन्फेक्ट कर रहा है, उसके मतलब बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कुछ सिम्टम्स होते हैं, और टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, इसके लिए भी कुछ सिम्टम्स, इसके वजह से भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं, जैसे तुम लोगों ने भी मुझे बताया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉजल एजेंट। Plasmodium is the causal agent. Which Plasmodium? There are a few strains of Plasmodium. One is known as Plasmodium ovale. Next is Plasmodium vivax, जो तुमने बताया मुझे. Next is Plasmodium malaria. And then you have Plasmodium falciparum. ये 4 स्ट्रेन्स हैं, प्लाज्मोडियम के ही अंडर में ये 4 स्ट्रेन्स हैं जो तुम्हारा मलेरिया कॉज कर सकते हैं। कौन से हैं? ओवैली, प्लाज्मोडियम ओवैले, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फॉल्किपेरम, सारे ही कॉज कर सकते हैं। अब तुमने जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में बताया, मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज अ बिनाइन इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब ज्यादा स्प्रेड नहीं करता ये इन्फेक्शन। मैं व्हाट डू यू मीन बाय बिनाइन इन्फेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और जो प्लाज्मोडियम ओवैली है, प्लाज्मोडियम ओवैली इट कॉजेस अ वेरी वेरी माइल्ड टर्शियन, it causes a very very mild tertian infection. Okay, so Plasmodium ovale, it causes a very very mild infection. Plasmodium vivax, it causes a benign infection, ज्यादा spread नहीं करता है, थोड़ा relatively वो उतना mild नहीं है, strong है, लेकिन it does not spread so much. Okay, by spreading इसका मतलब क्या है, I'll explain. Next is Plasmodium malaria. ये quaternary infection cause करता है, which is at times it is very symptomatic, at times it is not that symptomatic, so ये vary करता रहता है। और falciparum, it is the most dangerous. falciparum जो disease cause करता है, that is the most dangerous type of a disease. Okay, you need to remember this. Okay, and at times it causes something which is known as, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, something which is known as cerebral malaria. It causes something which is known as cerebral malaria. Is this clear? Yes, Is this understood? স্যার মাইল্ড টার্সিয়ান মানেটা কি? কি বলছো? মাইল্ড টার্সিয়ান tertiary infection, mild infection. It's a mild infection. ज्यादा उसका it's not very grave. अब I'll explain to you कि कब मैं उसको mild कहता हूँ, कब मैं उसको cerebral कहता हूँ, कब मैं उसको benign कहता हूँ, वो until and unless तुम पूरा epidemiology और पूरा symptom and spread पढ़ोगे, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। So किसको कब क्या कहा जाता है, ये खुद ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा। I'll talk about it. Okay. Okay, यहाँ तक if you are fine, let's move on. Okay, next is ये जो मलेरिया है, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। कौन कौन कॉज करता है ये तो हम लोगों ने देख लिया है। अब ये बात है कि ये जो प्लाज्मोडियम है, इसका एक फीचर है, इट इज डाइजेनेटिक। the plasmodium protozoa, it is a digenetic parasite. Digenetic क्यों? Because it completes its life cycle in 2 different hosts. It completes its life cycle into 2 अलग अलग होस्ट हैं, उसमें वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। So the first one
is known as the primary host, and the second one is known as the secondary host. The first one is known as the primary host, the second one is known as the secondary host. Primary host किसको कहते हैं? Primary host को हम बोलते हैं definitive host. Definitive का मतलब क्या होता है? जहां पर वो ऑर्गेनिज्म अपना सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है. The place where the organism completes its sexual phase. और secondary host है intermediate host. It is known as the intermediate host. Now, can someone tell me कि for this malarial parasite, who is the primary host and who is the secondary host? Female Anopheles mosquito primary and human secondary. Yes, female Anopheles mosquitoes. Okay, and intermediate is? Who is the intermediate host? Human. Human being. Okay, yes, human. Okay, interesting thing मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ. Interesting thing यहाँ पर ये है कि ये जो this protozoa है, it grows and completes its life cycle in the female Anopheles mosquito, but it does not harm the mosquito. It does not harm the mosquito. मस्कीटो के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है. कोई भी इफेक्ट नहीं है. ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट है उसका. कैसे है, क्यों है, I'll explain. अच्छा, मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ. मलेरिया को मलेरिया क्यों बोला जाता है? Any idea? I think you don't. Many of you may not know it, but मैं एक हिंट देता हूँ. ये जो वर्ड है, इसको डिवाइड करो. इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करने की कोशिश करो और फिर मुझे बताओ. Anyone? Malaria something. मैल एरिया. गुड. मैल का मतलब क्या है? मैल फंक्शनिंग का मतलब क्या है? रॉन्ग फंक्शनिंग और बैड फंक्शनिंग. सो मैल का मतलब है रॉन्ग और बैड, एंड एरिया मतलब एयर. एब्सोल्युटली. सो मलेरिया ये टर्म आया है फ्रॉम बैड एयर. मैला और मैल simply means bad. Okay, so ये disease initially when it was being discovered, initially in the year 1872, then it was called malaria because it was being spread through air, through bad air or foul air. इसीलिए इसको मलेरिया कहा जाता था. एंड व्हाट यू आल्सो नीड टू नो इज दैट मलेरिया में मैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करूंगा. सो ये जो मलेरिया है, इट वाज इनिशियली टर्म्ड एज मलेरिया बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था म्यूकिलॉक. You don't need to know so much, but next is Lancisi was another scientist. Lancisi was a very important scientist और उन्होंने पहली बार बताया था कि there is a relationship between malaria and there is a relationship between mosquito. ये जो mosquito के साथ spread करता है या mosquito के वजह से spread करता है, Lancisi was the scientist who had expressed this or who had proposed this. And then later on there was another scientist known as Laveran. Very, very important. और लैवरन का डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ही हैड सीन दैट इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट्स वहां पर मलेरियल पैरासाइट्स मिलता है. ओके, वहां पर मलेरियल पैरासाइट मिलता है. सो these three scientists, one of the scientists उन्होंने he had termed it malaria. Okay, Muciloc. Then Lancisi का discovery important था because Lancisi had connected malaria with mosquitoes. The fact that malaria is being caused by mosquitoes, ये उन्होंने बताया था. And later on, there was another scientist जिनका नाम था Ronald Ross. ये तो तुम लोगों को पता होगा.
And Ronald Ross, very, very important, you know, he was the one who had actually said that it can be transmitted by the bite of a female Anopheles mosquito. ये जो तुम बोल रहे हो female Anopheles mosquito, ये term ये discover किया था Ronald Ross ने. So have you understood? So a brief history about malaria. Malaria, people have been suffering from malaria since years and years. And malaria का मतलब होता है bad air, mal air or bad air. Mucilov was the one who had talked about the fact that it's a bad air disease. Lancisi told that malaria is somehow related to mosquito. Laveran was the scientist who had said that indeed, he could actually, isolate the parasite from the human host. And then Ronald Ross was the one who could, um, what can I say, who actually established the fact कि female Anopheles mosquito के वजह से ये spread करता है. अच्छा, मैं यहाँ पर तुम्हें 3 terms, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई problem है तो बोलो. Okay, now see, I'll use 3 terms. ये शायद तुम लोगों को ज्यादा क्लियर होगा जब मैं लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगा. जब मैं लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगा तब ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए, अच्छा मैं और एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. और एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो व्हाट कैन आई से मस्कीटो है, राइट, व्हाट कैन आई से द अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ सैंग्विनिवोर? What is a sanguinivorous animal? सर जो ब्लड के ऊपर फीड करता है. Yes, so blood acts as the nutrient. ब्लड फीड करता है, उसको हम सैंग्विनिवोर कहते हैं. तब यहाँ पर तो तुम देख पा रहे हो कि जो मस्कीटो है, the female Anopheles mosquito, it is what can I say, वो ब्लड को फीड करता है. बट इंटरेस्टिंग थिंग इज इट इज नॉट अ ट्रू सैंग्विनिवोर. इट इज नॉट अ ट्रू सैंग्विनिवोर. तो फिर वो ब्लड क्यों फीड करता है? ब्लड इसीलिए फीड करता है, ये जो ब्लड है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द, इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स और स्पेशल प्रोटीन मोइटीज रहता है जो उस व्हाट कैन आई से जो प्रोटोजोआ है उसको न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब नॉट न्यूट्रिशन, उसके ग्रोथ और लाइफ साइकिल कंप्लीट में हेल्प करता है. इट इज ब्लड डज नॉट एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट ओवर हियर. इट हैज सर्टेन फैक्टर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल. हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, मैं यहाँ पर 3 टर्म्स यूज करूंगा. द फर्स्ट इज साइजोगोनी और शीजोगोनी, व्हाटएवर यू से. मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम लेटर, बट मैं ये 3 टर्म्स यूज कर रहा हूं. देन इज गैमोगोनी एंड देन इज स्पोरोगोनी. आई एम यूजिंग 3 टर्म्स. One is schizogony, next is gamogony, another one is sporogony. What is schizogony? Schizogony एक ऐसा स्टेज है जहां पर बैक्टीरिया डिवाइड करता है. बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करेगा? What is the mode of reproduction in case of a bacteria? Fission. Fission, binary fission. Okay, binary fission से डिवाइड करेगा and we will call it multiple fission. So the bacteria, sorry, I'm very sorry, not bacteria, the protozoa. The protozoa, it is dividing by multiple fission. और शाइजोगोनी कहां पर होता है? शाइजोगोनी के लिए ह्यूमन होस्ट की जरूरत पड़ती है. आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस, ये जो तुम्हारा प्रोटोजोआ है, इट इज अ डाइजेनेटिक प्रोटोजोआ. इसका मतलब क्या है? इट हैज 2 सेपरेट forms. It completes its life cycle in 2 separate hosts. एक उसका कैरियर या फिर वेक्टर होस्ट है और दूसरा है मतलब एक में वो अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और एक में इनिशिएट करता है. तो ये जो शाइजोगोनी स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है? मल्टीपल फिशन होता है. और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? कहां पर होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है. ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पर होता है? एक लिवर में हो सकता है, इट कैन हैपन इन द लिवर, और इट कैन ऑल्सो हैपन इन द आरबीसी. जब ये लिवर में होगा इसको हम कहेंगे हेपेटिक शाइजोगोनी. I'll call this hepatic शाइजोगोनी.
जब ये आरबीसी में होगा इसको हम कहेंगे हेमोलाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक, व्हाटएवर। एरिथ्रोसाइटिक भी बोला जाता है, हेमोलाइटिक भी बोला जाता है। हेमोलाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज गैमोगोनी। गैमोगोनी से समझ में आ रहा है यहां पर क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन भी ह्यूमन बींग्स में ही स्टार्ट होता है। एंड देन यू हैव स्पोरोगोनी, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन होता है। यहां पर बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन होता है। सो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द लाइफ साइकिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई वांट, अच्छा, Shorjashish wants to join. I did not check this. ओके, चलो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। मुझे बताओ, मलेरिया को मलेरिया क्यों कहा जाता है? कैन यू सी मी? Yes, sir. बोलो। Malaria, मलेरिया, Bad air. bad air. मलेरिया दैट मींस बैड एयर, यस। अच्छा, मलेरिया, मलेरिया कब कैसे डिस्कवर्ड हुआ था कि इट कुड स्प्रेड थ्रू बैड एयर? ओके, हु वाज द साइंटिस्ट हु हैड सेड दिस? कम ऑन, टेल मी। किस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि इट इज एसोसिएटेड विद बैड एयर और इट स्प्रेड्स थ्रू बैड एयर? नो वन? क्लास में अटेंटिव होना पड़ेगा। अब ये तो मुझे स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट, ये अगर मुझे बोले, इट्स आई डोंट नो व्हाट, शेमफुल। म्यूकलॉक, ओके। उसके बाद देन देयर वाज अनदर साइंटिस्ट हु हैड कनेक्टेड मलेरिया विद द मस्कीटो। उनका नाम याद है? Lancet. लैंसिस। ओके, एंड देन और एक डिस्कवरी हुआ था, वो क्या था? Parasite in human. ओके, किसने बताया था? Laveron. एंड व्हाट डिड रोनाल्ड रॉस से? Female Anopheles transmit the parasite. ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, इट इज अ डैश टाइप ऑफ अ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल। Digenetic person. Digenetic protein. यस, क्यों कहते हैं उसको डाइजेनेटिक? 2 host है इसके लिए. दो अलग अलग होस्ट है। व्हाट आर द होस्ट्स? Primary Female and secondary. and human. हाँ, सो प्राइमरी, अच्छा, प्राइमरी होस्ट को प्राइमरी होस्ट क्यों बोला जाता है? Sexual phase complete করে ওখানে। यस, सेक्सुअल फेज जहां पर कंप्लीट होता है उसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ओके, एंड ओके, फाइन, दैट इज इट। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ प्लाज्मोडियम हु कैन कॉज दिस डिजीज? Ovally, Vivax, Mallory and Falciparum. Okay, and which one is the most dangerous? Falciparum. Falciparum. What type of malaria does it cause? Cerebral malady. Cerebral malaria, and very very dangerous. Okay, which malaria causes a benign malaria? Which strain causes a benign? Vivax. Vivax. Okay, अच्छा, मैंने 3 टर्म्स यूज किए। उनके लाइफ साइकिल में 3 मेजर स्टेजेस होते हैं, वो क्या क्या है? Cyzogony, Gamogony, Sporogony. साइक्लोगोनी में क्या होता है? Multiple Need him fission. at most. ओके, कहाँ पर होता है? Liver RBC. ऑफ, Human. वो Human. पहले बताओ, वरना वो पहले बताओ कि ह्यूमन में होता है, फिर वहां के लिवर में या आरबीसी में होता है। यस, गैमोगोनी कहाँ स्टार्ट होता है? Gamete formation. Gamete formation. कहाँ स्टार्ट होता है? Humans. ओके, Humans. स्पोरोगोनी? A mosquito. what yes, what phase is it? क्या चलता है यहाँ पर? Sexual Spore phase. formation. ठीक है, चलो तो फिर रिवाइज हो गया। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज लुक एट द बोर्ड। एनी डाउट? यहाँ तक मैं बार बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो यू आस्क मी। ओके, नो डाउट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है
लेकिन समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप समझो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा देखो, ये साइकिल है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद द स्पोरोजॉइट स्टेज। स्पोरोजॉइट को हम कहते हैं द इन्फेक्शियस स्टेज। स्पोरोजॉइट है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखने लायक है, ये स्पोरोजॉइट कहाँ पर फॉर्म होता है? स्पोरोजॉइट फॉर्म्ड होता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर। स्पोरोगोनी होता है, स्पोरोगोनी अभी तुमने बताया कि स्पोरोगोनी कहाँ पर होता है। द स्पोरोगोनी विल हैपन इनसाइड द मस्कीटो। तो स्पोरोगोनी का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज द स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड इन द मस्कीटो। ये जो मस्कीटो है उसका जो सलाइवा है, उस थ्रू द सलाइवा, ये सपोज दिस इज द स्किन लेयर, with the help of saliva ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं with the help of which it can enter it can enter the bloodstream of the human beings. Okay, saliva is very very important. Okay, so this is the infectious stage. और उसके बाद क्या होता है, ये जाता है कहां पर जाता है? इट गोज टू द लिवर सेल्स। ये हमारे लिवर सेल्स में जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं रिपीट करता हूँ। स्पोरोजॉइट कहां पर फॉर्म होता है? मस्कीटो में। विद द हेल्प ऑफ द यू नो क्या कहते हैं उसको, सलाइवा, इट पासेस टू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड देन द ह्यूमन बींग्स के अंदर वो एंटर करने के बाद वो कहां पर चला जाता है? टू द लिवर सेल्स। आई विल राइट लिवर ओवर हियर। इट गोज टू द लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में जाने के बाद सपोज ये स्पोरोजॉइट यहाँ पर एंटर कर रहा है, लेट मी यूज अनदर कलर। स्पोरोजॉइट यहाँ पर एंटर कर रहा है। यहाँ पर स्पोरोजॉइट अगर फॉर्म नहीं होगा वो इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा, ठीक है। और ये मैंने ऐसा सर्कुलर ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअली ट्रू स्पोरोजॉइट अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो ये ऐसा दिखता है, बट ऐसा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ elongated, but it looks like this. It is somehow spindle shaped. It is a spindle shaped cell. Okay, okay. Next is ये यहाँ पर एंटर करता है और एंटर करके लिवर को अपना घर मानता है। लिवर को वो अपना घर मानता है, ठीक है। और करने के बाद वो एक यूनी न्यूक्लिएटेड, अपना न्यूक्लियस उसका बहुत टाइम डिवाइड करता है। लेट मी यूज द येलो कलर ओवर। उसका न्यूक्लियस काफी बार डिवाइड करता है, एंड द न्यूक्लियस गेट्स सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस गेट्स सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमंस। तो ऐसा एक चीज बन जाता है। तो लीवर ऐसा के बाद एक बार बोलिए, हाँ, लिवर के जाने के बाद। में वो जाता है और उसका न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड करता है, राइट। और डिवाइड करने के बाद इट गेट्स सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म व्हिच इज derived from, at times it is derived partially, it is derived from the liver cells. Okay, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द शाइजॉन्ट स्टेज। शाइजॉन्ट स्टेज क्यों बोलते हैं इसको? Why is it known as the शाइजॉन्ट? साइज नहीं होता है इसलिए। हाँ, बहुत बार डिवाइड कर रहा है इसलिए, मल्टीपल फिशन होता है इसलिए। और फिर देखो, ये देखो, मैं यहाँ पर आई एम जस्ट नॉट ड्राइंग इट, आई एम रबिंग अ पोर्शन। सी, फिर ये वाला पोर्शन बर्स्ट कर जाता है, इट बर्स्ट्स एंड देन इट इज ऑल रिलीज्ड, इट इज ऑल रिलीज्ड लाइक दिस। ये जो यहाँ पर रिलीज्ड होता है इसको हम कहते हैं these are known as मेरोजॉइट। इस स्टेज को हम कहते हैं द मेरोजॉइटिक स्टेज और क्रिप्टोमेरोजॉइटिक स्टेज। लिखता हूं मैं यहां पर, इट इज नोन एज द क्रिप्टोमेरोजॉइटिक स्टेज। स्टार्ट करते हैं, फिर से करते हैं। ये है मेरा आई हैव, कहां से स्टार्ट होता है? लेट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्पोरोजॉइटिक स्टेज से स्टार्ट किया है, मुझे एक्सप्लेन करने में इजी होगा इसीलिए। मैं स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट कहां पर फॉर्म होता है? इन द
liver cells, sorry, in the mosquito, वो with the help of the saliva enters the bloodstream of the humans. वहां से वो लिवर को जाता है, लिवर को वो इन्फेक्ट करता है, लिवर सेल के अंदर वो शाइजॉन स्टेज दिखाता है, एंड देन द लिवर सेल्स बर्स्ट. सो कैन यू सी वन थिंग, कैन यू सी वन थिंग, लिवर सेल्स के अंदर वो जा रहा है और फिर लिवर सेल्स बर्स्ट हो रहा है. So is it good for the liver or is it bad for the liver? Bad for the liver. Bad for the Bad liver. for the liver. So bad for the liver. यहाँ पर कोई टॉक्सिन रिलीज होता है क्या? No, no toxin is released. But because the bacteria, sorry, because the protozoa is infecting, and that is why the liver का पूरा सत्यानाश हो जाता है यहाँ पर. Okay. Now, yeah, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? This is known as the Schizon stage और Schizogony stage. इस स्टेज को हम कहते हैं, बिकॉज ये लिवर में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हेपेटिक Schizogony. This stage is known as the hepatic Schizogony. Okay. और यहां से जो रिलीज होता है, इट इज नोन एज द क्रिप्टोमेरोजाइगोट. जो रिलीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोमेरोजाइगोट. ये जो क्रिप्टोमेरोजाइगोट है, ये दो टाइप के होते हैं. द क्रिप्टोमेरोजाइगोट्स, these are of two types. One is known as microcryptomerozygote, and the next it is known as mega cryptomerozygote or macro cryptomerozygote. ठीक है? दो मैंने क्या बोला? There are two types of merozygotes that are formed. One is micro cryptomerozygote, another one is mega cryptomerozygote. ये जो माइक्रो है, नाम से समझ में आ रहा है, इट इज स्मॉलर, एंड दिस स्मॉल मेरोजाइगोट, व्हाट इट कैन डू, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर. This can go and infect the blood cells. This can go and infect the blood cells. Blood cells को ये infect करता है. Right? This is the RBC, हाँ. और मेगा क्रिप्टोमेरोजाइगोट क्या करेगा? Any idea? Any blind idea? सर वो लीवर सेल में रिटर्न जाएगा. बिल्कुल, वो वापस जाएगा लिवर सेल्स के पास. द मेगा इट गोज बैक टू द लिवर और वापस इन्फेक्शन, जो मतलब स्वस्थ लिवर सेल है उसको जाके वापस इन्फेक्ट करता रहता है. ठीक है? तो फिर पहले इन्फेक्शन स्टेज, फिर लिवर के अंदर डिवाइड करता है. क्या फॉर्म होता है? क्रिप्टोमेरोजाइगोट. क्रिप्टोमेरोजाइगोट दो टाइप के होते हैं, माइक्रो, मेगा. मेगा वापस हेल्दी लिवर सेल्स को जाके इन्फेक्ट करता है, और जो माइक्रो है वो किसको इन्फेक्ट करता है? आरबीसी को. क्लियर? तो ये वाला अभी क्या करेगा? आरबीसी में जब वो डिवाइड करता है ना, तुम बाहर से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट, यू जस्ट कैन नॉट ऑब्जर्व इट. बिल्कुल देख नहीं पाओगे. लेकिन वो इसके अंदर मतलब मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके एक ड्रॉ करूं, जस्ट टू एक्सप्लेन. एक जन ने यहाँ पर इन्फेक्ट किया है, एंड देन ये डिवाइड करता रहता है. इस तरीके से डिवाइड करते 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 पूरा साइटोप्लाज्म को वो ईट अप कर लेता है. इट ईट्स अप द साइटोप्लाज्म. एंड ये जो आरबीसी है, मतलब आंखों से देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर प्रोटोजोआ है. दिस इज द वर्स्ट पार्ट. तुम्हें आंखों से देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा. ओके? और दिस व्हाट कैन आई से, लेकिन ये जो आरबीसी है, इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ. ये अगर आरबीसी को हम देखें, द आरबीसी विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस. उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल क्रिएट होगा. सॉरी. ये अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल क्रिएट होता है. राइट? और इसको हम, इस स्टेज को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज द, एक रिंग की तरह लग रहा है ये, दिस नोन एज द सिग्नेट रिंग स्टेज. इट इज नोन एज द सिग्नेट रिंग स्टेज. अच्छा, ये भी एक शाइजोगोनी है, बिकॉज द क्या कहते हैं उसको, जो प्रोटोजोआ है वो डिवाइड कर रहा है यहाँ पर. दिस इज ऑल्सो शाइजोगोनी, बट व्हाट टाइप ऑफ शाइजोगोनी इज दिस नोन एज? एरिथ्रोसाइटिक. एरिथ्रोसाइटिक. इसको एरिथ्रोलाइटिक भी बोला जाता है, क्योंकि
थोड़े देर बाद तुम देखोगे कि दिस वेरी आरबीसी ये इस तरीके से बर्स्ट ओपन करता है और इसके अंदर से उसके बाद तुम ऑब्जर्व कर पाओगे और इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे यू नो व्हाट कैन आई से ये रिलीज होते हैं, क्या कहते हैं, मिलियंस ऑफ मेरोजॉइड्स यहाँ से रिलीज होते हैं, मिलियंस। हाँ, एक सिंगल आरबीसी से मिलियंस नहीं रिलीज होगा, लेकिन ब्लड में ओवरऑल मिलियंस ऑफ शाइजोन्स रिलीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर ये जो तुम्हारा, मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, आरबीसी के अंदर ये जो तुम्हारा प्रोटोजोआ है वो डिवाइड कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर डज इट गेट द न्यूट्रिशन, एनी आइडिया? सर फ्रॉम ब्लड। नहीं, ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर प्रोटोजोआ है, लेकिन आरबीसी के आरबीसी साइटोप्लाज्म। नो, देयर इज समथिंग ओवर देयर जिसके ऊपर वो फीड करता है, देयर इज वन थिंग ओवर देयर। आरबीसी के अंदर कुछ एक ऐसा चीज है, सबको पता है, हेमोग्लोबिन। एब्सोल्युटली हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ये फीड करता है और हीमोग्लोबिन को वो तोड़ देता है, एंड हीमोग्लोबिन इस वे में उनका मेटाबॉलिक पाथवे कुछ ऐसा है कि द हीमोग्लोबिन नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग व्हिच इज नोन एज हीमोजोइन। सर हीमोजोइन टाइप है बोल। हीमोजोइन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो उस आरबीसी के अंदर ग्रो कर रहा है, सो द हीमोग्लोबिन फीड्स द प्रोटोजोआ and it gets converted into something which is known as hemozoin. Why is hemozoin so very important? Because hemozoin is a toxin. स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं, वन बिकॉज ऑफ द directly because of the growth of the microorganism, and the second due to the release of toxin. And I had also said that this is a very very complicated disease because यहाँ पर देखो ह्यूमन बींग्स में एक जगह पर वो देखो, एक तो लिवर सेल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टोमेरोजॉइड्स, ओके, एंड नेक्स्ट क्या करता है, वो जब आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के ऊपर वो फीड करता है, और हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड करने के बाद इट breaks down the hemoglobin into something which is known as hemozoin. और ये hemozoin बहुत important है, just the way मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि lipopolysaccharide is very important and it goes to the hypothalamus and it what can I say, destroys the balance. ये hemozoin भी same काम करता है, the hemozoin also does the same thing. So इसको हम क्या कहते हैं, anything which can cause fever, उसको हम क्या कहते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, let's see who remembers. Pyrogenic. Good, pyrogen. It is a pyrogen. This hemozoin is a pyrogen, और इसीलिए more or less 48 आवर्स के अंदर अगर तुम्हारा स्पेशली प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इन्फेक्शन अगर होता है या फिर एनी प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा चिलिंग होगा, एक्सट्रीम चिलिंग, एक्सट्रीम चिल कंडीशंस। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नियरली 105 तक बढ़ सकता है, 105 तक बढ़ सकता है। शिवरिंग कंडीशन कहते हैं इसको हम, वेरी वेरी मतलब एकदम शिवर करता है पर्सन, इतना उसको ठंडा लगता है और बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम बाकी स्टेज में जाएंगे। सो लेट अस रिवाइज दिस नाउ। स्टार्ट करो, लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट करेंगे तुम लोग बताओ? स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज। ओके, स्पोरोजोइट कहां पर किस में फॉर्म होता है? सलाइवा ऑफ एनोफिलीज। No, 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 no. It is not formed in the saliva. It's formed in the gut. It is spread through the saliva. Okay, okay, पढ़ना। Yes, Okay, sir. अच्छा, क्या होता है बताओ, मुझे बताओ, तुम लोग बताओ। सर सलाइवा के थ्रू स्प्रेड करता है, फिर वो ह्यूमन के लिवर सेल के ऊपर आता है। पहले ब्लड, पहले ब्लड,
ब्लड में वो स्पोरोजोइट्स रिलीज होते हैं, उसके बाद वो लिवर के पास जाता है। ओके, लिवर के पास जाने के बाद लीवर पे वो मल्टीपल फिशन करता है, तो उसको हम ओके, साइजोन स्टेज कहते हैं। शाइजोगोनी कहते हैं। हाँ, ओके, उसके बाद वहाँ से साइजोन निकल जाता है, तो उसको हम कहते ओके, हैं एक क्रिप्टोमेरोसॉइड सेकंड। स्टेज। शाइजोन जब रिलीज होता है, शाइजोन किस टाइप का होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ अ शाइजोन स्ट्रक्चरली? हेपाटिक साइजन। हेपेटिक सेल से क्या डिराइव होता है वो? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस खुद का रहता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल लिवर का रहता है, थोड़ा सा पार्शियल लिवर से रहता है, तो इसीलिए ये है। तो द लिवर सेल्स आर बेसिकली डिस्ट्रॉयड। ओके, तो वो बर्स्ट ओपन करता है, और बर्स्ट ओपन होने के बाद क्या रिलीज होता है? क्रिप्टोमेरोजाइगोट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिप्टोमेरोजॉइट्स आर देयर? 2 टाइप्स। 2 माइक्रो एंड मेगा। ओके, डिफरेंस क्या है? माइक्रो आरबीसी पर अटैक करता है, और मेगा फिर से लिवर सेल पे रिटर्न करता है। हेल्दी लिवर सेल्स को। हाँ, क्रिप्टोमेरोजॉइट वापस लिवर सेल से साइकिल होता रहता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा साइकिल खुद का चल रहा है। ओके, फाइन, ठीक है। आरबीसी में बताओ। अच्छा, ये जो लिवर में जो स्टेज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइजोन स्टेज। व्हाट टाइप ऑफ शाइजोन? हेपेटिक साइजोन। हेपेटिक शाइजोन और हेपेटिक शाइजोगोनी। ओके, अब ये जो माइक्रो मेरोजॉइट है, वो फिर क्या करता है आरबीसी के अंदर? व्हाट डज इट डू? मल्टीपल फिशन स्टार्ट करता है, फिर से वो साइजोगोनी प्रोसेस स्टार्ट करता है। और वो फीड न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हीमोग्लोबिन और आरबीसी। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को वो मेटाबोलाइज करके क्या बनाता है? हीमोजॉइन और पाइरोजन। Yes, it's a pyrogen. What do you mean by a pyrogen? फीवर कॉजिंग एजेंट। Okay. और ये जो फीवर कॉजिंग एजेंट यहाँ से रिलीज होता है ब्लड के अंदर, यू नो, what can I say? What is the nature? Chemical nature? It is a dash toxin. It is a toxin and it causes fever. और इसके वजह से जो जिसको मलेरिया हुआ है, उसको अराउंड 48 आवर्स के बाद चिलिंग, बहुत ज्यादा फीवर आएगा, एंड द फीवर कैन इंक्रीज अप टू 105 डिग्री और 106 डिग्री। ओके, एनी डाउट यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। স্যার টক্সিনটা এন্ডো না এক্সো কোনটা বলবো এন্ডো हाँ शम्मो, क्या बोल रहे हो? স্যার টক্সিনটা এন্ডোটক্সিন বলবো তো No, it's not an endotoxin. Shamo, it is not an endotoxin because ये कोई बैक्टीरिया से रिलीज नहीं हो रहा है। एंडोटॉक्सिन किसको कहते हैं? গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া इसको থেকে तुम যেটা एंडोटॉक्सिन क्यों कहोगे? সো এক্সোটক্সিন No, it is not an exotoxin also. ये तो बैक्टीरिया रिलीज भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पर तो बैक्टीरिया होता भी नहीं है। You don't classify this to be a endotoxin or a exotoxin, right? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स दो कैटेगरीज में रिलीज होते हैं। अगर बैक्टीरिया के अंदर रहता है देन एंडोटॉक्सिन, अगर बाहर रहता है, अगर बाहर रिलीज होता है, एक्सोटॉक्सिन। डिड यू अंडरस्टैंड? ये है यस मेटाबॉलिक স্যার ইয়েস टॉक्सिन, স্যাर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है which acts as a toxin. Are you understanding this? It is a metabolic waste which acts as a toxin. ইয়েস স্যার Let us continue. स्क्रीन देखो सब। देखो, मैं ना ये वाला पोर्शन फिर रब कर देता हूँ। कैन आई रब दिस ऑफ? मैं ऊपर वाला जस्ट पोर्शन रख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखो, ये आरबीसी को उसने इन्फेक्ट किया, और आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद तुमने अभी मुझे ओ अच्छा, और इसको हमने मिस किया एक पॉइंट, कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एरिथ्रोलाइटिक, और जब लाइसिस होता है तब लाइटिक, अदरवाइज जब वो डिवाइड करे तब साइटिक। सो एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी कहते हैं इसको।
ठीक है, और यहाँ से क्या रिलीज होता है, बहुत सारे अमाउंट्स ऑफ व्हाट इज रिलीज्ड, मेरोजोइट्स। यहाँ से भी मेरोजोइट रिलीज होगा आरबीसी को ये करने के बाद। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, यहाँ पर भी जस्ट द वे देखो, जब क्रिप्टोमेरोजोइट था वहां से माइक्रो और मेगा था, यहाँ से भी माइक्रो और मेगा है, यहाँ से भी माइक्रो है और मेगा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, द माइक्रो it leads to the formation, it is a precursor for the formation of micro gamete या फिर male gamete। जो माइक्रो मेरोजोइट है over here, it acts as the precursor for gamete, मेल गैमेट, और इसीलिए हम इसको गैमेटो माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट इज नॉट अ गैमेट, but it is the precursor of a gamete. Have you understood this? It is known as the precursor of a gamete. और मेगा भी वही, it will be the female. This is the female gametophyte, this is the male gametophyte. Okay, micro gametophyte is the male gametophyte का मतलब क्या है, precursor। I'll repeat myself, ये merozoitic stage ही है, लेकिन because it is a precursor to the micro to the male and the female gametes, that is why it is known as micro gametophyte and mega gametophyte। तुम ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर मेरोजोइटिक स्टेज से अब गैमेटोफाइट कैसे बन गया, नो नो, इट्स नॉट अ गैमेट बट इट्स अ प्रिकर्सर टू अ गैमेट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? यहाँ से डायरेक्टली कोई गैमेट नहीं होता है, इट्स नॉट अ गैमेट बट इट्स अ प्रिकर्सर टू अ गैमेट। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब देखो इस स्टेज में, ओनली इन दिस स्टेज, ये कहां पर रिलीज होता है, ब्लड में। और इस स्टेज में अगर एक दूसरा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो आता है, एंड द सेकंड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इफ शी सक्स द ब्लड, तो ये दोनों मतलब माइक्रोगैमेटोफाइट एंड द मेगा गैमेटोफाइट दोनों एंटर करते हैं, दोनों एंटर करते हैं, एंड ओवर देयर इनसाइड द स्टमक, गट के अंदर, in the stomach of what, in the stomach of the female anopheles mosquito, these gametocytes, यहां से complete gametes बनता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कहां पर एग्जैक्टली बनता है, एक्सप्लेन दैट, बट ये कहां पर बनता है, इन द स्टमक, इंटेस्टाइन के थोड़ा ऊपर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टमक ये पूरा काम होता है। और फिर क्या होता है, ये यहां से मेल गैमेट बना, यहां से फीमेल गैमेट बना, सो मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, zygote। zygote। What is the stage? ये जब ये जो, so this is the completion of the sexual life cycle। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, what should I call this, zygote formation and gamete formation? गैमेटोगोनी। गैमोगोनी, गैमोगोनी। और कैन यू सी वन थिंग, इस गैमोगोनी के जब मैं गैमोगोनी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, बीच में एक गैप है, पिंक कलर का ये मैंने दिया है। सो कैन यू सी, ये गैमोगोनी में दोनों ही स्टेजेस इन्वॉल्व, दोनों ही होस्ट इन्वॉल्व है, ह्यूमन होस्ट भी इन्वॉल्व है, जहां पर माइक्रो और मेगा गैमेटोफाइट बनता है, मेगा एंड माइक्रो गैमेटोसाइट वहां पर बनता है, और फिर वो चला जाता है इनटू द फीमेल, एंड देन वहां पर जाने के बाद क्या होता है, इन द स्टोमक वहां से गैमेट्स बनता है, कंप्लीशन वहां पर हो रहा है, लेकिन इनिशिएशन होता है ह्यूमंस में। डू यू रियलाइज दिस? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब देखो मैं एक चीज थोड़ा सा, पता नहीं यहाँ पर समझा पाऊंगा कि नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो जाइगोट यहाँ पर बनता है, ये जो जाइगोट है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं ह्यूमन, तुम लोगों ने ह्यूमंस के इसमें तो पढ़ा है, वेट लेट मी टर्न द कैमरा टुवर्ड्स माय सेल्फ। ह्यूमंस में क्या होता है, इज दिस नॉर्मली ह्यूमंस में जो जाइगोट है, कैन इट मूव, इज इट मोटाइल? नो। नो। देन फिर वो गैमेट का इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इफ इट इज नॉट मोटाइल, उसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है? गैमेट का
फैलोपियन ट्यूब में कुछ सिलिया रहता है तो उसके वजह से वो आगे मूव करता है। Absolutely. Why only born now? Why are the rest of you not able to answer this? Why সরি are the স্যার, rest? আমি ভাবলাম হয়তো আপনি এটার ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করছেন, মানে না, আমি এই কেন মাইক্রোমেগার ক্ষেত্রে। কেন বলবো? আমি হিউম্যানের ক্ষেত্রে বলছি, আমি কেন এটা বলবো? तो ह्यूमंस में वो रहता है, लेकिन यहाँ पर जो गैमेट फॉर्म होता है, ये जो गैमेट है, it has the capacity to move. This is the difference. Normal जो हमारे में जो गैमेट मतलब जाइगोट फॉर्म होता है, it cannot move. तो इसकी खुद के flagella like structures होते हैं, not true flagella, flagella like structures which helps it to propagate, which helps it to move in the forward direction. Clear? Okay. एंड वो कैसे मूव करता है, ये मैं थोड़ा सा, शायद से ये उतना सिलेबस में इतने डिटेल्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज आई एम टीचिंग यू, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये ये वॉल के अंदर, ये जो मतलब इंटेस्टाइनल एंड द गट वॉल है, गट वॉल एपिथेलियल वॉल के अंदर से होते हुए ये स्प्रेड करता है, मूव करता रहता है। सो द ओवर हियर द जाइगोट, वो अपने आप को क्या करते हैं, ये सपोज एक जाइगोट है, तो जाइगोट अपने बाहर एक सिस्ट जैसा फॉर्म करेगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्ट, ठीक है, और वो स्टोमक वॉल के अंदर चला जाता है ये सिस्ट, और थ्रू द वॉल इट मूव्स। ये जो सिस्टिक स्टेज है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द oocyst। इस स्टेज को हम कहते हैं द oocyst स्टेज, राइट। और इस oocyst स्टेज में अब तुम लोग को पता है कि जाइगोट होने के बाद वो एक इरेशनल डिवीजन करेगा, ये तो हम लोग को पता है कि नहीं, बताओ? यस सर। पता है। और इस स्टेज को बहुत टाइम में यूकाइनेट भी कहते हैं, इट इज ऑफन नोन एज ऊकाइनेट। जब वो स्प्रेड कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है, ठीक है, करते 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 करते, दैट इज द मोटाइल जाइगोट स्टेज। और फिर वो डिवाइड करता है, बहुत ज्यादा डिवाइड करता है, करते 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 वहां से क्या रिलीज होता है, वहां से गट के अंदर, समझने की कोशिश करो, वहां से गट के अंदर रिलीज हो जाता है तुम्हारा समथिंग विच इज नोन एज द स्पोरोजोइड, स्पोर्स और द स्पोरोजोइड। आई विल एक्सप्लेन, जस्ट वेट। यहाँ पर ये एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये एंड नहीं हो रहा है। So, have you understood this entire thing? Any doubt? ये जा क्यों नहीं रहा है? I don't know. So Have you where understood? sir the cyst formation takes place? Cyst in the stomach? In the stomach itself? और कहाँ पर होगा? Right? अच्छा, अब देखो, ये जो स्पोरोजोइड्स रिलीज होते हैं, कहाँ पर रिलीज होते हैं? These are released and these are stored in these. I am saying released, not formed. These are released and stored in the salivary gland. These are released and stored in the salivary gland. और मैंने तुम लोग को कहा था कि सलाइवा इंजेक्टेड होता है, याद है? सलाइवा इंजेक्टेड होता है, उस सलाइवा, वो सलाइवा जब इंजेक्टेड होता है, सलाइवा के अंदर रहता है तुम्हारा स्पोरोजोइड्स। हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो? एनी डाउट? एनीवन? चलो, ये हो गया मेरा पूरा लाइफ साइकिल। कैन वी वेरी क्विकली रिवाइज दिस, वेरी क्विकली? स्टार्टिंग में हम थोड़ा ना उल्टा स्टार्ट करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ये यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्राउन एरिया से मैंने हाईलाइट किया, यहां से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स में दो टाइप के गैमेटोसाइट्स रिलीज होते हैं, क्या क्या है? व्हाट आर दीज? माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट। ओके, माइक्रोगैमेटोसाइट से क्या बनता है अल्टीमेटली? Precursor of the gamete, male which gamete? male gamete. ओके, एंड मेगा से फीमेल। ओके, तो ये इस टाइम में एक फीमेल ये कहां पर है? मेल सॉरी, ह्यूमन ब्लड में है। तो इस टाइम में इस ह्यूमन को कौन फीड करता है, इसके ब्लड को कौन फीड करता है?
फीमेल एनाफिलिस फीमेल एनाफिलिक्स। ओके करने सर हाँ बोलो। सर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर रहता है? फॉर्म होता है ह्यूमंस में, ब्लड में। ओके सर। Okay? इसको फीड करता है कौन? इसको फीड करता है तुम्हारा मस्कीटो। फीड करने के बाद ये कहाँ चला जाता है? Where does it go? द गट ऑफ गट द ऑफ द मस्कीटो। मस्कीटो Gut. So in the stomach, basically in the stomach. तो स्टोमक में क्या होता है? दे फॉर्म अ सीस्ट। हट, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होता है, मेल और वहां फीमेल से गैमेट जाइगोट। फॉर्म होता है। फिर वहां से क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। फिर इस हाउ इज दिस जाइगोट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जाइगोट दैट वी नो? फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर रहता है। So it can move. It is a motile zygote. ये अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट। And what is this gamete containing surrounded by the cyst known as? ओसिस्ट और ओकाइनेट। और ये कहाँ पर घुस जाता है? Where does it enter to protect itself? इन द वॉल ऑफ द स्टमक। Yes. और वहां से वो सामने की तरफ जा रहा है, और जब ये सामने की तरफ जा रहा है, उस सिस्ट के अंदर क्या होता है? What happens to the zygote? It does what? Division. इम्प्लांट। फॉर्म्स स्पोरोजोइट Divided नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर वो जब मूव कर रहे हैं तभी उसके अंदर जाइगोट के जो सेल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं। इरैशनल डिविजन, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डिविजन हो रहा है। और जब डिवाइड होता है क्या फॉर्म होता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स ओके, स्पोरोसाइट कहाँ पर रिलीज्ड और स्टोर होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो सलाइवरी। ये पूरा चीज किसके अंदर हुआ? फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। और ये जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, ये फिर किस बाइट करता है? अ हेल्दी ह्यूमन। अच्छा, क्या चीज रिलीज करता है? स्पोरोजोइट स्पोरोजाइट। स्पोरोसाइट कहाँ चला जाता है? ब्लड। Yes, through the blood to the लिवर। लिवर। Liver cell. Remember one thing, ये हाँ, ये मैं चीज बताना चाह रहा था, भूल गया था मैं। ब्लड में रिलीज हो रहा है, लेकिन ब्लड में पहले रिलीज हो रहा है, ये सच बात है। लेकिन what is that? एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी पहले नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? ब्लड में ही पहले ये रिलीज होता है, थ्रू द फ्रॉम द सलाइवा टू द ब्लड। बट शाइजोगोनी अगर मैं कंसीडर करूं तो पहले हेपेटिक शाइजोगोनी होता है, उसके बाद तुम्हारा ये शाइजोगोनी होता है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। यस सर सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि हेपेटिक मतलब एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी नॉर्मल स्पोरोजॉइट कॉज नहीं करता है, वो कॉज करता है तुम्हारा क्रिप्टोजॉइट, आई मीन क्रिप्टोमेरोजॉइट। The hepatic schizogony is being caused by the merozoite, but the erythroschizogony, it is being caused by the cryptomerozoitic stage. Clear? सर क्रिप्टोमेरोजॉइट और मेरोजॉइट में डिफरेंस क्या है? Merozoite is something, देखो, सॉरी, ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, merozoite नहीं, these are known as cryptomerozoite because of the structural aspect. Okay. मेरोजोइटिक स्टेज और उसके पहले वाला जो स्टेज है, दैट इज द स्पोरोजोइटिक स्टेज। स्पोरोजोइट मतलब स्पोर्स, दोज आर द स्पोर्स। स्पोर्स से जो इन्फेक्शन होता है, व्हिच हैव डायरेक्टली बीन फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट, वो इन्फेक्ट कर सकता है तुम्हारा लिवर। उसमें रिसेप्टर है उस स्पोर्स के लिए। तुम्हारे आरबीसी का जो साइज है, इट डज नॉट अलाउ आरबीसी टू डू दैट। ओनली वेरी फाइन मेरोजोइटिक स्टेज के जो बहुत छोटे छोटे सेल्स है, वही उसके अंदर इन्फेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो उसके अंदर जाके उसके अंदर वैक्यूल क्रिएट करके उसके अंदर ग्रो करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड अ लिवर सेल्स which can harbor large amount of relatively larger cells, larger spores, which are the sporozoitic stage. Clear? यस सर। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होता है। तो वो लिवर को गया, लिवर में जाके वो क्या करता है पहले? मल्टीपल फिशन। और लिवर का क्या होता है फिर? लिवर सेल्स क्या होता है? लिवर सेल बस्ट हो बस्ट हो जाता जाती है, है। उसके बाद वो हाँ, क्या रिलीज होता
होता है? क्रिप्टोमेरोजोइट्स। क्रिप्टोमेरोजोइट्स कितने टाइप के होते हैं? Two types, micro and Okay, what happens to the mega? मेगा mega रिटर्न्स टू से द healthy liver से Okay, and what happens to the micro? माइक्रो आरबीसी में चला जाता है। Okay, जाके वो इन्फेक्ट करता है। अच्छा, इस टाइम में तुम बाहर से देख के समझ पाओगे कि आरबीसी के अंदर ये प्रोटोजोआ इन्फेक्ट किया हुआ है? No, Anyone? sir. No, no no you cannot understand that. And what gets formed inside this thing? सिग्नेट रिंग फॉर्म होता है। सिग्नेट रिंग, पूरा एक वैक्यूल जैसा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। गुड। और ये इसको आरबीसी का क्या चीज फीड करता है? हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. और फीड करने के बाद हीमोग्लोबिन को खाने के बाद एक वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? Hemoglobin. फिर जब आरबीसी बर्स्ट ओपन करता है और उसकी वजह से फीवर होता है, चलो पाइरोजेनिक है। और ये जो बर्स्ट ओपन करता है, बर्स्ट ओपन करने के बाद दो चीजें रिलीज होते हैं, वो क्या क्या है? रिलीज ऑफ मेरोजोइट एंड हीमोजोइट। हीमोग्लोबिन तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन आरबीसी जब बर्स्ट करता है तब क्या रिलीज होता है? मेगा एंड माइक्रो गैमेटोफाइट। और ये हमने स्टार्ट यहीं से किया था कि इस गैमेटोसाइट को फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो सकिंग करता है। सो हैव यू अंडरस्टूड? मैंने पहले कहा था देयर आर 3 स्टेजेस। सो नाउ यू पीपल टेल मी, जो स्पोरोजोइटिक स्टेज है वो कहां पर होता है? Mosquito. जो तुम्हारा शाइजोगोनी है वो कहां पर होता है? ह्यूमन। human liver What are the two types of शाइजोगोनी? एरिथ्रोसाइटिक एंड Hepatic and erythrocytic. होता है? हेपेटिक। Hepatic. ओके। और ये शाइजोगोनी। और नेक्स्ट स्टेज है तुम्हारा गैमोगोनी, कहां पर होता है? स्टार्ट ह्यूमन में होता है, एंड होता है फीमेल एनाफिलिस में। क्लियर एवरीवन? दिस इज द लाइफ साइकिल। मैंने थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा है क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होती है। यस शाम को তো তার মানে আফটার ফর্মিং দ্য গ্যামেট ওটা থেকে যখন মুভ করছে স্টমাকের দিকে তখন সেখান থেকে আপনার জাইগোট তৈরি হলো এন্ড দেন সেখান থেকে সিস্ট তৈরি হলো স্টমাকের মানে দিকে কোনো জায়গায়। কি হয় এটা? সো ইন মুভিং কন্ডিশন কি বললেন জায়গাটা বুঝতে মানে সিস্ট में वो स्प्रेड करता है, उसको तो सलाइवरी ग्लैंड तक आना पड़ेगा, वहां पर वो स्टोर्ड होगा टू द वॉल। गट वॉल से वो स्प्रेड करता है, वॉल के अंदर से वो स्प्रेड তো স্যার ওটা কোথাও ইমপ্লান্ট করে না স্টমাকে? কি করে না? সম্মু কি বললে? তো স্যার ওটা স্টমাকে কোনো সময় ইমপ্লান্ট করে না, মানে জাস্ট একটা ফ্লোতে ওটা তৈরি হয়ে যায়? চাও তাহলে ইমপ্লান্ট বলবে, ঠিক যেমন ওই ফিটাসটা ফর্মেশন হয়, তোমার প্লাসেন্টা ফর্মেশন হয়, ভেতরে গিয়ে তার বাইরে ওয়াল তৈরি হয়, এই ধরনেরই একটা জিনিস হয়, বাট দিস ক্যান মুভ, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। না ওই রকম ইমপ্লান্ট হয়ে এক জায়গায় থাকে। ওকে, আচ্ছা প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স। Sir, ইয়েস ইয়েস উশোশী টেল মি। sir, যেই স্পোরোজয়েডস গুলো লিভার সেলে যেতে পারে না হিউম্যানস এর মধ্যে তারা কি মরে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা মরে যায়। বিকজ আমাদের ব্লাডের মধ্যে এরকম আছে ম্যাক্রোফাজ স্পেশালি, যারা এই সব স্পোরোজয়েটই যে মানে হলেই যে আমার প্রচুর লিভার ড্যামেজ হবে, প্রচুর ইনফেকশন হবে তা নয় কিন্তু। হ্যাঁ, বাট ওটা অ্যামাউন্টের উপরও নির্ভর করে। দেয়ার অলওয়েজ ইজ দ্য কম্পিটিশন, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, কিছুটা Okay, ডিস্ট্রয় আমার ইমিউন সিস্টেম কিছুটা ডিস্ট্রয় করতে পারে, কিন্তু যদি খুব বেশি হয় তাহলে ডিস্ট্রয় করতে পারবে না। Okay. अच्छा, प्लास्मोडियम वाइवैक्स जब भी हम कहते हैं तब हम प्लास्मोडियम वाइवैक्स के बारे में ही बात करते हैं। तो प्लास्मोडियम वाइवैक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में प्लास्मोडियम वाइवैक्स का इन्फेक्शन ही सबसे ज्यादा होता है, राइट? बिनाइन क्यों कहते हैं? ये जो रेकरेंट स्टेज है, रेकरेंट जो स्टेज है ना, वो कम होता है। मतलब ये जो मेगास्पोरोजॉइड जाके वापस इन्फेक्ट करेगा, ये वाइवैक्स में, प्लास्मोडियम वाइवैक्स में रिलेटिवली कम है। लेकिन प्लास्मोडियम वाइवैक्स में जो होता है वो फीवर बहुत ज्यादा होता है, और रेकरेंट फीवर।
बार बार फीवर होता है, क्योंकि द मेगा क्रिप्टो गैमेटो सॉरी मेगा जो तुम्हारा मेगा नॉट मेगा, आई एम वेरी सॉरी, मेगा क्रिप्टोमेरोजॉइड जो है वो तो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइड है इट कैन अगेन एंड अगेन इन्फेक्ट द आरबीसीज, एंड आरबीसी का लाइसिस इसमें बहुत ज्यादा होता है, एंड द फीवर इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, बहुत दिनों तक ये फीवर रह जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज पैरोसिम्स, रेकरेंट एक फीवर स्टेज जैसा बनता है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कहा द मोस्ट डेडली इज फॉल्कीपेरम, वेरी वेरी हार्मफुल बिकॉज इसके कुछ रिसेप्टर्स हैं, मतलब ये जो इसके मतलब आफ्टर द ब्लड इज बीइंग लाइज्ड देयर आर सर्टेन metabolites that are being released that has receptor in the brain and which causes the brain more susceptible to meningitis. That is why it is very very dangerous. Okay, और बाकी जो ओवेली है और मलेरिया है दैट इज मोर और लेस सिमिलर, ये काफी सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि ये स्प्रेड कैसे करता है, हाउ डज इट गेट ट्रांसमिटेड, सो इट गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, और कौन से जगह से या कौन से फेज में ये होने से क्या कहते हैं, कौन से फेज में सक इन करने से इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, ये तो तुम लोगों को पता है, ये मैंने Sporozoite. या समझा दिया है। तो देर आर टू फेजेस जहां पर ह्यूमन बीइंग और इसका ह्यूमन बीइंग और मस्कीटो के इंटरेक्शन होना चाहिए। एक तो है प्रिकर्सर ऑफ द गैमेटोसाइट, ये वाले स्टेज में यहाँ पर ब्लड फीड होना चाहिए, द मस्कीटो मस्ट फीड ऑन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन, and then again the mosquito must enter the release the saliva into the human beings. So those stages yahan par hona chahiye. So one in the pre gametocytic stage, or rather in the gametocytic stage, and then second in the infectious of the sporozoitic stage. दो जगह पर mosquito human interaction agar hota hai, then the complete cycle is completed and a successful infection is being created. kahin par bhi break hota hai to it does not spread. Okay, acha. And last thing that I would like to talk about over here is the how can you prevent, like prophylaxis क्या है। prophylaxis देखो कुछ drugs हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा for example quinine, paludrin, azithromycin. So again here there मैंने तुम लोगों को last class में समझाया था कि there are two classes of treatments. One is the treatment of the disease symptoms and another one is the treatment of the cause. So disease symptom का अगर मैं बात करूं तो fever को तुम subside कर सकते हो. For that you can have crocin, calpol, ये सब. Okay, and to subside the infection then you need to have quinines or azithromycin or paludrins, antibiotics तुम लोगों को लेना पड़ेगा. But these days I think you people know this कि मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, पहले DDT स्प्रे किया जाता था, because मलेरिया का जो लार्वा है, the larva it is being released in water or it can divide in stagnant water. ये तुम लोग को सबको by now we know this, stagnant water में वो जो पानी एक जगह पर रह जाता है वहां से वो स्प्रेड करता है, तो इसीलिए वहां पर वो लार्वा डिवाइड करता है और ग्रो करता है, तो इसीलिए पहले डीडीटी स्प्रे किया जाता था, लेकिन डीडीटी अभी पूरा बैंड है क्योंकि उसमें बायोमैग्निफिकेशन देखा जाता है. सो दिस थिंग्स यू हैव लर्नड इन द लास्ट यूनिट. ओके, so because of this it has been stopped. Can you tell me there is something else that is used these days? कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता है, बट देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड these days. What is that? उस चीज को हम क्या कहते हैं? In place of pesticides, what do you use? Biocontrol agent. Yes, good. Biocontrol agents. Can you name some biocontrol agents? Gambusia. What is that? Fish. Good. It's a fish. What does it feed on? Larva maybe. It feeds on the Malaysian. Anopheles larva. Yes. And there is another thing. ये तो fish है. इसके अलावा और भी कुछ एक चीज है. Plant से भी होता है.
This is a fish that survives on the larva. Then you have another type of a plant. ये तो तुमने लास्ट यूनिट में पढ़ा भी होगा environmental factors में. There is an insectivorous plant. Anyone? Utricularia. So Utricularia is a plant which feeds on the mosquito larva. So it's a what type of a plant? What type of a plant is that? It's the insectivorous plant. So you use these biocontrol agents these days in place of DDT. But DDT was very successful. It was very successful in curing or killing the mosquitoes. लेकिन यूज नहीं होता है क्योंकि देखो कितने साल हो गए हैं DDT बैंड हो गया है, लेकिन अभी भी here and there अगर तुम मेजर करो DDT in the water level or in some human beings, DDT का कुछ ना कुछ लेवल अभी भी मिलेगा. इतना मैग्नीफाई हो गया in the environment. Clear everyone? Yes, sir. Yes. Not in your syllabus, but I'll just give you a small information. कुछ एक day है, it's coming, मतलब very near आ रहा है. It is known as the World Malaria Day. What is that? अगस्त में. Random एक नंबर बताओ, बहुत अच्छा नंबर है. थर्ड. No, 20th. 20th is World Malaria Day and 28th is the World Mosquito Day. You don't need to know this for your NEET. Anyway, ठीक है, चलो, I'll end the class in that case. Sir. If you have any doubt, ask. স্যার ইয়ে ম্যালেরিয়ার যে স্যার 3টে ফেজ আছে, ওই যে ফিভারের যে 3টে ফেজ আছে ওটা কি মনে রাখতে হবে না মানে ওটাকে করব? देखो ही इज सेइंग कि फीवर के 3 फेजेस हैं. एक है हॉट फेज, एक है कोल्ड फेज, एक है शिवरिंग फेज. हाँ, ये जानना पड़ेगा. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब ये हेमोजोइन रिलीज होता है तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो दैट इज द हॉट स्टेज एंड देन इट इज एसोसिएटेड विद द वेट स्टेज. वेट स्टेज का मतलब होता है कि इतना तुम क्या यू आर इतना तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है कि तुम्हारा बॉडी उसको कोप अप करने के लिए बहुत ज्यादा स्वेट करता है. सो दैट इज नोन एज द वेट स्टेज. एंड देन स्वेट करने के बाद यू पीपल नो दैट स्वेटिंग इज एसोसिएटेड विद इवेपोरेशन एंड इट इज एसोसिएटेड विद कूलिंग. दैट इज नोन एज द कोल्ड स्टेज. ওকে স্যার. স্যার আর মসকিটো ডেটা কি বলুন আমি বলুন? 20th August and 29th August. 20th August is known as the World Malaria Day. 29th August is known as the World Mosquito Day. Because 29th वो रोनाल्ड रॉस का एनिवर्सरी है, इसीलिए. मतलब एनिवर्सरी का बर्थडे वे नहीं है. उन्होंने ये उस दिन बताया था, एस्टैब्लिश किया था उस दिन, उनका पेपर पब्लिश किया. ठीक है, any doubt? I'll cater doubts now. Sir, not a doubt, but it's something related to college. Can I say it here? It is, so if you are recording the meeting, एक second Teresa. If you are recording the meeting, please stop recording the meeting. I think we are done with the class. कुछ doubt है तो पूछो. हाँ टेरेसा बोलो. सर, क्योंकि आपने बताया था ना कि आपने हमारा इंटरनल्स का पेपर सेट किया है. सर एडी सर ने हमें बोला था हमें सजेशन मिलेगा, कि कोई सजेशन नहीं मिला है. हमारे ग्रुप में बच्चे पागल हो जा रहे हैं. अब सजेशन तुम लोग को नहीं मिला है तो मैं आरसी के क्लास में कैसे सजेशन दे दूं? मैं आपको सजेशन देने नहीं बोल रही हूँ. एडी सर ने बोला था कि सुतानुका मैम देगी हमें सजेशन, इसीलिए मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ. So you're going to inform everyone if I tell you today? This is what you're saying. Wait. No sir. Oh no, तब तो नहीं बताना चाहिए. ठीक है. अभी आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं, आप देना चाहे तो दे सकते, तो मैं सबको बताऊंगी. तो लेकिन सबको रुको. obviously this is a group thing ना, so yeah. एक सेकंड रुको.
रुक जाओ भाई, I cannot give you the question paper, but I can give you an idea about like capsule क्या है, DNA virus क्या है, proteobacter क्या है, selective media, different types of media, interferon, viral vaccine, plant DNA plant virus, RNA plant virus, GC content के ऊपर डिपेंड करके, उसके बाद temperature tolerance, salt tolerance के ऊपर lysogeny lytic बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ये सब पढ़ोगे। बहुत बेसिक बता दिया। उसके बाद और क्या पढ़ोगे? वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, ये सब पढ़ोगे। उसके बाद गैप जंक्शंस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ लेना, प्राइमरी मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर में क्या डिफरेंस है वो सब पढ़ लेना। उसके बाद प्रोटीन मॉडिफिकेशन में गोल्गी एपैरेटस का रोल क्या है, नेक्रोसिस और क्या कहते हैं एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है, आरएनए सिंथेसिस कब होता है, डीएनए सिंथेसिस कब होता है, ये सब पढ़ लेना। मतलब वो जो डिफरेंट फेजेस है कब क्या होता है, लैमिन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेम सेल्स जब पढ़ोगे तब प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड टोटीपोटेंट में क्या डिफरेंस है। सो यू नो उसके बाद क्या लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है, व्हाई इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। স্যার আপনি কোন কলেজে পড়ান? আমি सेंट कोर्स से पढ़ा, तो ये सब पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके सर, मैंने जितना लिख पाया मैं सबको भेज दूंगी। नहीं नहीं, मत बोलना कि मैंने बोला है, मत भेजो मत भेजो, डोंट सेंड। यू नो अगर उन्होंने कहा है, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया भी नहीं। नहीं सर, ठीक है? मैंने बस आपको इन्फॉर्म किया ताकि अगर एडी सर शायद भूल गए होंगे